We can continue with our class. Okay, fine. So recording has started. Everyone just put your attendance so that we can continue with our class. Okay, fine. So before I start presentation, I would like to ask you a few questions to all of you. How many of you remember that we have studied speed, distance, displacement, velocity, acceleration? These 3 or 4 terms we have already learned, right? How many of you remember? Just put your answer in the chat box whether you remember or not. And if not, then what you do not remember. अगर आपको कुछ याद नहीं है तो क्या याद नहीं है ये आपने मुझे बताना है. सब लोगों को याद है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. ओके, वेलोसिटी याद नहीं है, विशाल को वेलोसिटी याद नहीं है, ठीक है. बाकी लोग, कादम्बरी ने आंसर दे दिया, आयुष ने आंसर दे दिया. What about others? Vaishnavi, Vedant? Do people remember everything or not? So velocity is nothing but, Vishal, velocity is displacement divided by time. Right? Velocity is displacement divided by time. Now you must know what is displacement. Yeah? Do you know what is displacement? Vishal, can you tell me if you are comfortable turning on your mic? Please turn on your mic and tell me what is displacement now. Vishal, turn on your mic and you can give the answer. Mic on करो विशाल और बताओ. डरने की कोई बात नहीं है, तुम बता सकते हो बिंदास. What is displacement? Okay, विशाल नहीं बता रहे हैं. Who else can? बाकी कौन बताएगा? कादम्बरी, वैष्णवी. Okay, कादम्बरी is interested. कादम्बरी, please turn on your mic and give the answer. Yes, sir. Displacement means a distance between finishing point and starting point. Very good. See, forgot. विशाल ऐसे बोलना नहीं है. Displacement is the shortest distance or shortest length between starting point and finishing point. Shortest, right? मतलब जितना minimum हो सकता है उसे हम displacement कहते हैं. Displacement divided by time is what? Velocity. Now what is acceleration? चलो विशाल इन्वॉल्व हो गया, अभी कादम्बरी ने भी आंसर दे दिया. Now what about you people? आयुष, वैष्णवी एंड वेदांत, आप तीनों में से किसी एक ने बताना है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन. चलो बताओ जल्दी से, तभी हम आगे बढ़ेंगे. कौन बताएगा आप तीनों में से, वरना मैं तीनों से पूछूंगा वन बाय वन. चलो आप लोग जल्दी से आंसर नहीं देते हो इसके लिए. वेदांत, टर्न ऑन योर माइक. Okay, Ayush, I will give you chance also. Vedant, please turn on your mic quickly. जैसे ही मैं माइक ऑन करने के लिए बोलता हूं, आंसर आता हो या फिर नहीं आता हो, अपने माइक ऑन कर लेना है. Vedant, turn on your mic. Yeah, good. Vedant, yeah. Vedant, do you know what is acceleration? Yes, no? Vedant? Sir, not means correctly. But Yeah. acceleration. See, simply तुम्हें जैसा भी आता है वैसे बता दो मुझे. तुला जसं येतं तसं सांगू शकतोस, काही प्रॉब्लेम नाही. सांग वेदांत. सर नाही येते. थोडंफार तरी ऍक्सेलरेशन म्हणजे काहीच नाही माहिती का? नाही. Change in velocity per time. Change in velocity per time is called as velocity acceleration. बरोबर. चेंज इन वेलोसिटी आपण शिकलोय ना हे. ठीक आहे. आयुष,
तुम बताओ, चलो तुम्हें इंटरेस्ट है ना बताने में, तो बता सकते हो व्हाट इज एक्सेलरेशन? A change in velocity upon time is acceleration is equal to change in velocity upon time. ओके, वेरी गुड, ठीक है। सो change in velocity upon time is nothing but acceleration. Now I am presenting the screen. I hope it is visible to you all. So what we are going to learn today? We are going to learn today velocity time graph for uniform acceleration. Now you all know what is uniform speed or uniform velocity. Similarly, uniform acceleration is also the same thing. Right, see, the changes in velocity of a car in specific time intervals are given in the following table. So in this table, as you can see, ओके यहाँ पे टाइम दिया है हमें, यहाँ पे वेलोसिटी दिया है, राइट। सो 0 सेकेंड में जो है वेलोसिटी 0 ही थी, 5 सेकेंड्स में वेलोसिटी 8 पे पहुंच गई, 10 सेकेंड्स में 16 पे। लाइक सिमिलरली एज यू कैन सी, टाइम जो है वो 5 सेकेंड से बढ़ रहा है, वेलोसिटी जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है, राइट। तो इसी को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ग्राफ निकाल लिया। So as you can observe in the graph, that is x axis पे हमने क्या लिया है, x axis पे हमने लिया है time in seconds, and on the y axis we have taken velocity in meters per second, right? तो देखो टाइम जब 0 था, वेलोसिटी 0 थी, तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। टाइम जब 5 है तब वेलोसिटी 8 है, सो टाइम 5 है और वेलोसिटी 8 है, तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। सिमिलरली टाइम जब 10 था, वेलोसिटी 16 है, सो यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया। लाइक इसी तरीके से हमने पॉइंट्स ले लिए एंड वी ट्राइड टू कनेक्ट द पॉइंट्स। हमने ये पॉइंट जो है वो कनेक्ट किए, सो इट इज स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये स्ट्रेट लाइन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दैट मीन्स द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, बराबर। हु इज yeah, anything, nothing, good. So the velocity time graph in figure 1.8 shows that the velocity changes by equal amounts in equal time intervals. Thus this is uniform acceleration in accelerated motion. How much does the velocity changes after every 5 seconds कहना है यहाँ पे, I guess इन्होंने यहाँ पे minutes लिखा है, लेकिन after every 5 seconds. For all uniformly accelerated motion, the velocity time graph is straight line. So हमने ये पहले भी पढ़ा है कि जब कभी भी यूनिफॉर्म स्पीड हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, तो इनके लिए जो ग्राफ हम बनाएंगे वो हमेशा क्या रहेगा, इट विल बी स्ट्रेट लाइन ऑलवेज, राइट। तो फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस the velocity time graph may have any shape depending on how the acceleration changes with the time. So अगर acceleration uniform नहीं है, so in that case we cannot say whether the graph will be straight line or something else. It can be anything. उस ग्राफ को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, राइट। हम किस ग्राफ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सिर्फ उसी केस में जब स्पीड यूनिफॉर्म है या फिर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या फिर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब इक्वल टाइम इंटरवल के बाद में इक्वल उसमें इंक्रीज होना या फिर डिक्रीज होना, नॉट नेसेसरी ऑलवेज इंक्रीज होना है। मान लीजिए कि आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मोटरसाइकिल चला रहे हो, दैट इज वेरी फास्ट, ओके। लेकिन हर 10 सेकेंड बाद आप आपकी जो स्पीड है वो 10 से कम कर रहे हो, लाइक 10 सेकेंड बाद आपकी स्पीड जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर है, उसके 10 सेकेंड बाद जो है आपकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। तो ये भी तो आप यूनिफॉर्म डिसेलरेशन कर रहे हैं। एक्सेलरेशन का ऑपोजिट जो है वो डिसेलरेशन होता है, बराबर, मतलब स्पीड को कम करना। सो इसका भी अगर आप ग्राफ बनाओगे देन ऑल्सो दैट इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, ओके। तो यूनिफॉर्म आप स्पीड बढ़ाते हो, वेलोसिटी बढ़ाते हो या फिर एक्सेलरेशन बढ़ाते हो या फिर कम करते हो, ग्राफ जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही रहेगा फॉर यूनिफॉर्म। फॉर नॉन यूनिफॉर्म द ग्राफ इज अनप्रिडिक्टेबल। वी कैन नॉट टेल द ग्राफ what can be the shape of the graph,
वो ग्राफ किस तरह का रहेगा वो हम नहीं बता सकते। फ्रॉम द फिगर, मैं यहां से पढ़ रहा हूं, फोकस। फ्रॉम द ग्राफ इन फिगर 1.8 वी कैन डिटरमाइन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार बिटवीन 10th and 20th second as we did in case of train in previous example. The difference is that the velocity of the car is not constant unlike that of the train, but is continuously changing because of uniform acceleration. In such case we have to use the uniform velocity of a car in the given time interval to determine the distance covered in that time in that interval. तो जो हमने पिछला एक ग्राफ देखा था, आपको याद रहेगा, सी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ग्राफ पर्टिकुलरली। सो इसमें क्या था ना कि इसमें जो वेलोसिटी थी दैट वाज यूनिफॉर्म और दैट वाजंट चेंजिंग। यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट थी वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। नाउ सी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट। जब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं, सो दैट नॉट नेसेसरी कि आपको स्पीड हमेशा चेंज करनी है या फिर डायरेक्शन चेंज करनी है, राइट। वेलोसिटी, मान लीजिए आप किसी रास्ते पे जा रहे हो, लाइक यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस, राइट, एंड बस इज गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड इट इज रनिंग फॉर वन आवर। लेट अस सपोज 1 घंटे के लिए आप सफर कर रहे हो और 1 घंटे के लिए जो बस का स्पीड था वो 60 किलोमीटर पर आवर ही था। तो आप लोग मुझे बताइए वेदर द वेलोसिटी इज चेंजिंग हियर, वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या? वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या? ना तो स्पीड चेंज हो रही है ना डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज कैसे होगी? बराबर ना, कांस्टेंट ही रहेगी ना, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। डू यू एग्री विद दिस? आपको समझ रहा है मैं जो कह रहा हूं कि एक बस है जो कि 1 घंटे के लिए जब से निकली है आपके शहर से, वो जहां तक उसे पहुंचना है वहां तक वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जा रही है। सो वेलोसिटी इज चेंजिंग और नॉट चेंजिंग और नॉट। चेंज हो रही है तो चेंजिंग लिखिए, नहीं हो रही है तो नॉट लिखिए। वेलोसिटी इज चेंजिंग और नॉट। ओके, आई विल रिपीट द क्वेश्चन। सी, आपको बस से कहीं जाना है सफर करके, ओके, और आपकी जो बस है जब से आपके बस स्टैंड से निकली है तब से लेके आपके डेस्टिनेशन तक वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही दौड़ रही है। उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है और उसकी स्पीड भी चेंज नहीं हो रही है। तो आप मुझे बताइए कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है या फिर नहीं? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही वो जा रही है, ना ही 55। नॉट, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। सबको क्लियर है? वेरी गुड। आप मुझे बताइए अभी व्हाट इज एक्सेलरेशन? व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन कितना रहेगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 0 रहेगा एक्सेलरेशन, बराबर? या एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0। व्हाई? बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। नाउ जब आप आपके बस स्टैंड से निकले हो तब आपका जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, और जहां आप पहुंचे हो वहीं पे भी आपका एक्सेलरेशन 0 है, राइट? दोनों जगह पे आपका एक्सेलरेशन 0 है। नाउ यू टेल मी वेदर दिस इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेदर दिस इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कुछ लोग यस कह रहे हैं, नहीं ना, नहीं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा ना ये। नॉट, व्हाई नॉट? बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहना मतलब इक्वल टाइम इंटरवल के बाद में इक्वली एक्सेलरेशन थोड़ा सा इंक्रीज होना चाहिए, दैट विल बी यूनिफॉर्म, बराबर? मतलब एक किलोमीटर गया एक्सेलरेशन थोड़ा सा बढ़ गया, दूसरे किलोमीटर पे उतना ही बढ़ गया, तीसरे किलोमीटर पे उतना ही बढ़ गया, तब जाके वो यूनिफॉर्म कहलाएगा। लेकिन एक्सेलरेशन बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? एक्सेलरेशन बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? टू चेंज द एक्सेलरेशन व्हाट शुड बी चेंज्ड? वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा ना। जब वेलोसिटी चेंज होगी तभी जाके एक्सेलरेशन चेंज होगा, बिकॉज वी नो दैट
चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन, बराबर। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होने के लिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने के लिए हमें क्या चाहिए? चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। समझ रहे हो? मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है लेकिन फिर भी वेलोसिटी चेंजिंग रहेगी, बराबर। जब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं कि मान लीजिए कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो 5 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 5 मीटर पर सेकेंड का आपका एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि आपकी वेलोसिटी जो है वो एवरी 5 सेकेंड में 5 मीटर से बढ़ रही है। या we can also change the direction and speed of the bus, yeah, in order to change the velocity, right? Yeah, in order to change the velocity, but the thing that I want you people to understand is कि acceleration constant रहने के लिए भी velocity का बढ़ना जरूरी है constantly। ये चीज आपको सबको समझ में आई? या गुड, नाउ लेट्स गो फर्दर। तो यहीं पे अगर आप देखोगे तो 10 सेकेंड से लेके 20 सेकेंड्स के बीच में, सी ये 20 सेकेंड्स है, ये 10 सेकेंड्स है, तो हमें क्या निकालना है? We can determine the distance covered by the car between 10th and 20th second. We have to calculate the distance. Now formula for distance is टाइम एंड स्पीड। टाइम और स्पीड का एक फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डी इज इक्वल्स टू टाइम इनटू वेलोसिटी, राइट। तो हमारे पास टाइम है, वेलोसिटी है, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। हाउ वी कैन फाइंड आउट? सी, तो राइट, from the graph the average velocity of the car is 32 plus 16 by 2 is equals to 24 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए हमारे पास टाइम है, टाइम कितना है? टाइम है 10 सेकेंड्स, टाइम 10 सेकेंड्स है, बराबर, राइट? यस और नो? टाइम से 10 सेकेंड्स है। 10 से लेके 20 के बीच में कितना होता है टाइम? 10 सेकेंड्स होता है ना। अभी आप मुझे बताइए वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी तो चेंजिंग है ना। सी, जब 10 सेकेंड्स पे वेलोसिटी कितनी थी? 16 मीटर पर सेकेंड्स थी, एंड 20 सेकेंड्स पे वेलोसिटी जो है वो 32 मीटर पर सेकेंड हो गई। मतलब वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है बिकॉज एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो अभी हमें वेलोसिटी की तो एक वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसकी एवरेज वेलोसिटी लेंगे। एवरेज वेलोसिटी यानी क्या? starting velocity that is 16 plus the end velocity that is 32. 16 plus 32 is 48 and divided by 2, that is average velocity, which is 24 meter per second. This is average velocity. I hope you understand how we found out average velocity. हमने कैसे फाइंड आउट किया आपको शायद समझ में आ गया है। या गुड। सो मल्टीप्लाइंग दिस बाय द टाइम इंटरवल that is 10 seconds gives us the distance covered by the car, बराबर। अगर अभी हम हमारे पास वेलोसिटी है तो हमें क्या करना है? टाइम से मल्टीप्लाई करना है। सी, आपको अगर फॉर्मूला याद रखना है ना डिस्टेंस, टाइम और वेलोसिटी का, तो आप सिंपली ऐसे याद रख सकते हो, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टाइम इनटू वेलोसिटी, राइट। तो कैसे याद रखेंगे? सबके घर में डिश टीवी होता है ना, सो डिश टीवी, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टाइम इनटू वेलोसिटी, right? So I hope it will be easier for you to remember the formula for distance, velocity and time, right? तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो, dish TV यानी कि distance is equals to time into velocity. Now let's go further. So ये जो यहाँ पे दिया है ये स्क्वायर का वगैरह हमें एरिया निकालना है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। So हमें क्या निकालना था? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार निकालना था, जो कि हमने इस तरीके से निकाल लिया। वेलोसिटी चेंज हो रही थी, टाइम भी चेंज हो रहा था, लेकिन फिर भी हम डिस्टेंस निकाल पाए। ओके, तो ये समझने की कोशिश करो कि किस तरह से निकाल पाए। अभी मुझे बताओ, किसी को कोई डाउट? एनीवन हैज एनी डाउट? किसी को भी कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, आगे जाने के बाद में हम फिर से वापस नहीं आ पाएंगे। नो डाउट्स? ओके,
Virendra has no doubt. I need response from everyone. Okay, others. ओके फाइन, किसी को भी कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। चलो लेट्स कंटिन्यू। सो इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। नाउ अभी जो हम 3 मोशन के इक्वेशन सीखने जा रहे हैं ना, these 3 equations are very 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 much important, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 इक्वेशन आपको हमेशा याद होनी चाहिए। अभी कभी भी आपको कोई पूछेगा ना, सी ये पहले तो ये इक्वेशन है क्या ये मैं आपको बताता हूं, और तब जाके हम इसके बारे में और थोड़ा डिस्कस करेंगे। न्यूटन स्टडीड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड गैव अ सेट ऑफ 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। These relate the displacement, velocity, acceleration and time of an object moving along a straight line. तो अभी हमने डिस्प्लेसमेंट सीखा है, वेलोसिटी सीखी है, एक्सेलरेशन हमें पता है और टाइम तो सबको पता ही है। तो जो न्यूटन थे उन्होंने कुछ इस मोशन पे स्टडी किया एंड उन्होंने 3 इक्वेशंस दिए, इक्वेशंस ऑफ मोशन, राइट। न्यूटन सर जो है उन्होंने तो बहुत सारी चीजें दी है हमें, ग्रेविटी वगैरह। सो ये जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो सपोज एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन along a straight line. Now ये चीज ध्यान रखो कि the motion of object is in straight line, मतलब वो सीधी लाइन में मूव हो रहा है with the initial velocity u. Initial velocity मतलब शुरू की जो वेलोसिटी रहती है that is u. It attains a final velocity v in time t due to acceleration, right? अभी acceleration यानी क्या कि वो वेलोसिटी को चेंज करेगा, तो उस वेलोसिटी को चेंज करने के लिए कुछ टाइम लगेगा ना। तो शुरू की जो वेलोसिटी थी उसे हमने u कहा, और कुछ टाइम बाद जो वेलोसिटी चेंज हुई उसे हमने v कहा। फाइनल वेलोसिटी इज v एंड द ड्यूरेशन वी कॉल इट एज t, एंड द एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ विच द वेलोसिटी चेंज्ड वी कॉल इट एज a। तो एक्सेलरेशन के लिए हमने यहां पे क्या लिखा है, a लिखा है, t, एंड डिस्प्लेसमेंट इज s। अभी डिस्प्लेसमेंट के लिए जो हमने नोटेशन यहां पे लिखा है ना s, इसे हमने ध्यान देना है। द 3 इक्वेशंस ऑफ द मोशन कैन बी रिटन एज, नाउ द फर्स्ट इक्वेशन इज v is equals to u plus at. This is the relation between velocity and time, velocity and time. Okay, this equation is for velocity and time. Now second equation is s is equals to u into t plus 1 by 2 at square. This is relation between displacement and time. See, this is displacement. And v square is equals to u square plus 2as. This is relation between displacement and velocity. See, displacement is there s and velocity is again there, right? Change in yeah, that this is velocity. So let us try to obtain these equations by graphical method. So first of all, I want all of you to first of all write these 3 equations on your notebook. Everyone will write first equation, that is v is equals to u plus at. Second equation, that is s is equals to ut plus 1 by 2 at square. And the third equation is v square is equals to u square plus 2as. सब लोगों ने नोटबुक पे 3 इक्वेशंस लिखने हैं और चैट बॉक्स में डन ऐसा लिखना है। आज का जो आपका होमवर्क रहेगा दैट विल बी दिस ओनली, कि जिन्होंने इक्वेशंस नहीं लिखे हैं उनका उन्होंने होमवर्क नहीं किया, ये कंसीडर किया जाएगा। योर फर्स्ट पेज शुड बी ऑफ इक्वेशंस, मतलब आपके पहले पेज पे इक्वेशंस रहने चाहिए। लिख लिए सब लोगों ने? एवरीवन? वेदांत, डिड यू राइट द इक्वेशंस? बताओ, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आराम से इक्वेशंस लिख लेना
बाद में चैट बॉक्स में डाल देना कि सर डन। लिखिए, सब लोग लिखिए। नो, नो स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट नहीं, स्क्रीनशॉट तो हर कोई ले सकता है ना, मैंने लिखने को बोला है। सो यू हैव टू राइट। जब आप लिखोगे तभी आपको डाउट आएगा कि सर इसमें यू क्या है, वी क्या है। लिखना है, वेदांत आई डोंट एक्सेप्ट दिस, राइट डाउन, नोटबुक लेके बैठना है। मैथ्स का लेक्चर हो या फिर साइंस का हो, कोई भी लेक्चर हो, यू नीड टू हैव अ नोटबुक विथ यू। डन, ओके आयुष, फाइन, आराम से। ठीक, आयुष का हो गया मतलब सब लोगों ने जल्दी जल्दी लिखना है, ऐसा नहीं है। समझ के लिखो कि वो वहां पे दिया क्या है, वो समझ के लिखना है, सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना है। See, Vedant, this is reason. Sir, I am in my village and light is not there. This is the reason. अभी दुनिया में कोई भी ऐसा स्मार्टफोन नहीं होगा जिसको कोई फ्लैश लाइट नहीं है। तुम मोबाइल पे लेक्चर अटेंड कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा फ्लैश लाइट भी वर्क करेगा, बराबर ना। लेकिन अगर तुम्हें लिखना नहीं है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, चलो आयुष का हो गया, कादम्बरी का हो गया, बाकी लोग मैं सबसे पूछने वाला हूं। प्रार्थना, वैष्णवी, वीरेंद्र, विशाल, लिख लिया सब लोगों ने? ओके, ओके फाइन, चलो सब लोगों ने लिख लिया, वेरी गुड। तो अभी मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूं इन तीन इक्वेशंस को, और आप मुझे बताइए कि आप में से किस किस को डाउट है कि सर ये v क्या है, सर ये u क्या है, a क्या है, t क्या है, s क्या है, ये सारी चीजें क्या है, किसी को कोई डाउट है? u क्या है? ओके, u इज इनिशियल वेलोसिटी, u इज, चलो ठीक है, ओके ठीक है। अभी सब लोगों को थोड़ा थोड़ा डाउट है तो मैं क्या करता हूं ना, मैं यहाँ पे लिखता हूं तो आप सब लोग भी मेरे साथ लिखिएगा, राइट। सो हम तुम लोगों ने ये इक्वेशन तो लिख ही लिया है, तो इस इक्वेशन में जो जो चीजें दी है ना, तो मैं उसे यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए लिख के देता हूं, ठीक है। तो चलो, u इज, सॉरी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, लिख लो सब लोग, इनिशियल वेलोसिटी। v इज फाइनल वेलोसिटी, सब लोगों ने लिखना है। t इज टाइम, s इज displacement, and what is remaining now? a is acceleration. Sorry, students, just wait. Just a second, huh? I will show you the screen. Okay. 1/2 at square क्या? 1/2 is 1/2. A is acceleration. T is time. सब लोगों ने लिख लिया जो कुछ भी यहाँ पे मैंने लिखा है, U, V, T, S, A. A is acceleration ना, A is acceleration and T is time. That is AT. चलो ठीक है, ओके फाइन, लिख लिया सब लोगों ने। तो अभी आपके पास ये तीन इक्वेशंस हैं और इस इक्वेशन में हर एक चीज को क्या कहते हैं ये आपको पता है।
नाउ लेट्स गो फर्दर कि ये इक्वेशन आए कहां से, पहले ये ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मोस्टली आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे कि ये इक्वेशन आए कहां से, आपको इसका प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी एज अ साइंस स्टूडेंट यू मस्ट नो कि सर आपने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिखा है दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at, लेकिन ये आया कहां से, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो इसके लिए हम इसका प्रूफ दिखेंगे। सो इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, दैट मीन्स आवर फर्स्ट इक्वेशन। तो हम जो पहला प्रूफ देखेंगे ना वो रहेगा फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ। नाउ लेट्स गो फर्दर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस इक्वेशन is derived or where this equation come from. From figure 1.9 shows the change in velocity with time of uniformly accelerated object. The object starts from point D in the graph with the velocity u. Its velocity keeps increasing after time t. It reaches to the point B on the graph. तो देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, see this is time, on the x axis we are taking time, okay, ये जो है ये टाइम है और ये वेलोसिटी है, ये दो चीजें आपको समझ में आ गई। नाउ नेक्स्ट, एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमने यहाँ पे शुरू किया और इसकी वेलोसिटी हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज हो रही है एंड एट सम पॉइंट बी, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो चुकी है, राइट। पहले क्या थी, ये u थी, इनिशियल वेलोसिटी, हमने लिखा है ना इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि शुरू की वेलोसिटी उसकी u थी, और जब वो b पॉइंट पे पहुंच गया तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। वेलोसिटी देखिए हमने y एक्सिस पे लिया है, जब मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो आपको y एक्सिस पे देखना है। इनिशियल वेलोसिटी थी u एंड फाइनल वेलोसिटी उसकी हो गई v। नाउ टाइम देखिए, यहां पे शुरू हुआ था एक्चुअल में, वो जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो मोशन में यहां पे शुरू हुआ था इस पॉइंट पे, और यहां से जब वो यहां तक चला गया तो उसके लिए टाइम कितना लगा, तो t टाइम लगा, राइट। तो अभी हमारे पास क्या क्या है, u है, t है और t है। इस ग्राफ को समझने में किसी को दिक्कत, ये ग्राफ कैसे आया, किसी को समझने में दिक्कत, नो, ओके। सी वेदांत एंड दोज हु आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, किसी को भी अगर प्रॉब्लम आ रही है ना तो मैं आपको बताता हूं कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम आपके साइड से आ रही है बिकॉज यू नो दिस इज आई गेस आवर थर्ड लेक्चर एंड वी आर गोइंग वेरी स्लो, हम बहुत स्लो जा रहे हैं, बराबर ना। क्यों स्लो जा रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज आपको समझ में आए इसके लिए हम स्लो जा रहे हैं। तो और मैं आपको हर बार पूछ भी रहा हूं कि अब आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। मैं एक कंसेप्ट को 3 बार 4 बार रिपीट कर रहा हूं, क्यों रिपीट कर रहा हूं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एकदम फिट होना चाहिए माइंड में। जब हम बार बार उसे रिवाइज करेंगे ना तभी जाके ये हमारे माइंड में फिट होगा, और तभी जाके आपको इसका फायदा जो है वो 9th में तो मिलेगा ही मिलेगा, 10th में 11th 12th में इसका आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आप मतलब सोच भी नहीं सकते इतना ज्यादा आपको इन सब चीजों का फायदा होगा 11th 12th के लिए और 10th के लिए। वहां पे आपको कोई नहीं सिखाएगा कि ये इक्वेशन कहां से आया, आपको सिर्फ एग्जांपल दे देंगे, ये एग्जांपल सॉल्व करो, ये आपके पास फॉर्मूला है। ओके ओके ठीक है वीरेंद्र, तुम्हें अगर तुम्हारे साइड पे नेटवर्क इशू है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा जो क्लास है वो यूट्यूब पे भी अपलोड होता है, सो यू कैन वॉच दिस क्लास आफ्टरवर्ड्स ऑन यूट्यूब, ठीक है। चलो तो आगे जाते हैं, या तो ये ग्राफ हो गया। तो अभी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट u इज इक्वल्स टू ओडी। तो देखिए वेलोसिटी जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ जीरो रहेगी, राइट, यहाँ पे जीरो है ना, ओ पे जीरो है। तो जब ये इनिशियल वेलोसिटी मतलब जहां पे वेलोसिटी शुरू हुई दैट विल बी ओडी, राइट, एंड द फाइनल वेलोसिटी विल बी ओसी, यानी कि दिस कंप्लीट डिस्टेंस ओसी, राइट। तो u को हमने डिनोट कर दिया ओडी से, v को हमने डिनोट कर दिया ओसी से, एंड टाइम t इज ओई। अभी टाइम t को मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ओई ऑब्वियसली, बराबर ना। सो अभी हमें 3 चीजें मिल गई, दैट इज u, v एंड t, बट स्टिल वी डू नॉट हैव a। हमारा जो पहला इक्वेशन है ना इसमें आप लोग देखिए कि हमें v है, u है, a भी है और t भी है, हमें 3 चीजें तो मिल गई लेकिन अभी तक a नहीं मिला है। तो a इज व्हाट, a इज एक्सेलरेशन।
What is acceleration? Acceleration is nothing but the change in velocity divided by time. हमारे पास velocity है, वो चेंज भी हो रही है. चेंज हो रही है मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी है, उससे चेंज होकर कुछ फाइनल वेलोसिटी बन रही है. दैट इज नथिंग बट द चेंज इन वेलोसिटी. तो हम एक इस तरह से निकाल सकते हैं. देखो यहां पे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. ये हो गया. तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विल बी चेंज इन वेलोसिटी. बराबर ना? मान लीजिए कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 10 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी थी 50 किलोमीटर पर आवर. सो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ? 40 से बढ़ी ना, मतलब 10 थी तो 50 हो गई, यानी कि 40 से चेंज हो गई. सो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम. सो फाइनल वेलोसिटी हमारी है ओसी और इनिशियल वेलोसिटी हमारी है ओडी एंड टाइम टी. टी के लिए हम टी ही रखेंगे यहां पे, राइट. और दिस इज व्हाट? दिस इज ए. बराबर. एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू ओसी माइनस ओडी, दैट इज टी. अभी देखिए ये ओसी है, कंप्लीट ओसी है. बराबर. और ओसी में से अगर मैं सबट्रैक्ट कर देता हूं ओडी को, ओडी इज सबट्रैक्टेड, राइट. दिस पोर्शन इज सबट्रैक्टेड. सो व्हाट इज रिमेनिंग? रिमेनिंग पोर्शन इज व्हाट? बताइए. इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे? व्हाट विल बी दैट पोर्शन? सीडी. बराबर. सीडी है ना? हाँ. तो देखिए ये ओसी माइनस ओडी को हमने सीडी लिख दिया. ठीक है. तो मैं इसी एग्जांपल को यहां पे लिख देता हूं कि ए इज इक्वल्स टू ओसी माइनस ओडी की जगह पे मैं सीडी लिख देता हूं और डिवाइडेड बाय क्या रहेगा? टी ही रहेगा. नाउ इस टी को मैं क्या करता हूं? इस साइड में भेज देता हूं, ऑन द दिस साइड, राइट. सो इट विल बी CD is equals to 80. Yes or no? CD is equals to 80. Yes, good. So sir अभी ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया. अभी आगे क्या करना, क्या है इसका? देखो CD is equals to 80 आ गया है. नाउ अभी A भी आ गया है, इक्वेशन में A भी आ गया है. ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू B. So this is the line. This dotted line is parallel line to y which is passing through B. B is the our final point. This will cross the x axis at E. Obviously, draw a line parallel to x axis. This is x axis line. This is line parallel to x axis and passing through. Sorry, this is not this one. Draw a line parallel to x axis passing through D. This will क्रॉस द लाइन BE एट A. तो इस ये जो लाइन है BE को कहां पे कट कर रही है? A पे कट कर रही है, राइट. तो इससे क्या होगा? देखो फ्रॉम द ग्राफ BE इज इक्वल्स टू AB प्लस AE. सी दिस कंप्लीट इज BE. सॉरी मैं थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ कर पाता हूं तो माफ कर दीजिएगा. ओके. या BE इज इक्वल्स टू AB प्लस AE, राइट. तो यहीं पे हमने ये लिख दिया है. या गुड. सो अभी देखना BE इज व्हाट? BE इज नथिंग बट V. बराबर. देखिए BE जो डिस्टेंस है ना वो V है. यस और नो? BE इज V. BE V क्यों है? सबको समझ में आया? BE की वैल्यू V क्यों है? यस और नो? कादम्बरी यस, और बाकी लोग यस. आयुष को भी समझ, ठीक है. विशाल को नहीं समझ में आया. देखो विशाल यहां पे B है, मैं मार्कर चेंज करता हूं जिससे कि आपको समझ में आएगा. मैं अभी ग्रीन मार्कर से लिख रहा हूं. ओके. तो देखना यहां पे B है, यहां पे E है. ये डिस्टेंस जो है ना दोनों में का, ये BE है. तो अगर हम B से इस तरफ जाएंगे तो y एक्सिस पे आपको क्या मिल रहा है? व्हाट इज हियर? V है. या सो उसे हम V कहेंगे ना. तो BE इज V. नो AB इज व्हाट? AB प्लस
AE, अभी देख लेना AB is equals to CD. See, this is AB, this is AB and this is CD. Okay, so AB is equals to CD है, AE is equals to OD है, this is AE and this is OD. Okay, तो हमने क्या कर दिया, सिर्फ जो राइट साइड में था ना, ये जो लाइन हम यहां की बात कर रहे थे, तो ये सारी चीजें चेंज करके हमने यहां पे ला ली, बराबर। B की जगह हमने V लिखा, AB की जगह पे हमने CD लिखा और AE की जगह पे हमने OD लिखा। तो मैं अभी इसको सारा रब कर देता हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन रहा है अभी, ठीक है। चलो, तो इतना सब तो हमने लिख लिया। नाउ B की जगह पे V लिख दिया। CD क्या है, व्हाट इज CD? CD इज इक्वल्स टू व्हाट? CD इज इक्वल्स टू व्हाट? CD इज इक्वल्स टू 80 हमने निकाला है यहां पे, देखिए ना, CD इज इक्वल्स टू 80। तो यहां पे CD की जगह पे मैंने 80 लिख दिया। OD इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज OD। OD इज इक्वल्स टू U, तो ये मैंने U लिख दिया। तो देखिए बन गया हमारा पहला इक्वेशन, V इज इक्वल्स टू U प्लस 80। यही हमारा पहला इक्वेशन है। यस और नो? अभी मुझे बताना किस किस को समझ में नहीं आया। ये सवाल जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। 100%, 99% आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे कि एक्सप्लेन वाई V इज इक्वल्स टू U प्लस 80। आपको उस पर कोई सवाल आ जाएगा, एग्जाम्पल प्रॉब्लम आ जाएगा, लेकिन इसका प्रूफ नहीं पूछेंगे। लेकिन फिर भी आपको ये आना चाहिए। किस किस को समझ में आया, किस किस को नहीं आया? यू कैन पुट इन द चैट बॉक्स यस और नो, आइदर। आयुष को समझ में नहीं आया, ओके फाइन, ठीक है। और कोई? विशाल को समझ में आ गया, फाइन, ठीक है। तो आयुष क्या है ना, देखो अभी तुम्हें समझ में क्या नहीं आया मैं तुम्हें बताता हूं। अगर तुम खुद से रिकॉल करने की कोशिश करोगे ना, सर ये V प्लस U प्लस 80 इज इक्वल, मतलब ये कहां से आया, तो ऐसे रिकॉल नहीं होगा। लेकिन जब तुम स्टेप बाय स्टेप जाने की कोशिश करोगे ना, कि सबसे पहले तो हमने एक ग्राफ बना लिया, उसमें हमने एक इनिशियल वेलोसिटी U ली, बाद में V लिया, राइट। उसके बाद में हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइंड आउट किया, हमने CD इज इक्वल्स टू 80 लिखा, बाद में हमने एक BE लाइन पैरेलल ड्रॉ की y एक्सिस के, तो उस BE लाइन को हमने पूरी तरह से मैप कर दिया y एक्सिस पे ही, मतलब कि AB की जगह पे मैंने V लिख दिया, बराबर। AB की जगह पे, सॉरी V नहीं लिख दिया, AB की जगह पे क्या लिख दिया था हमने, हाँ बराबर है, V ही लिख दिया था, राइट। CD की जगह पे 80 लिख दिया, और जो AE था उसकी जगह पे मैंने U लिख दिया। ये तीन चीजें मैंने रिप्लेस कर दी। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर से रिकॉल करने की कोशिश करोगे तो आपको याद आएगा कि हाँ सर, हम जो हमने मतलब सीखा है वो हमें थोड़ा बहुत याद है, बराबर। मतलब आपको कंप्लीटली याद हो जाएगा ये एक्सपेक्ट मत कीजिए, लेकिन जो मैंने स्टेप्स आपको बताए, समझाए, वो स्टेप्स समझ में आना जरूरी है, आई होप, राइट। चलिए, सो मूव फर्दर। आयुष अगर समझ में नहीं आया है ना, तो जस्ट रिवाइज द यूट्यूब लेक्चर। यूट्यूब पे जो हम अपलोड करते हैं ना, वो एक बार रिवाइज कर लेना, ओके। आई एम श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैंने लेफ्ट कर दी हो कि आपको मैंने बताया नहीं है। सो आई होप दिस इज नॉट द इशू। नाउ लेट्स मूव फर्दर। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सबको याद होना चाहिए। व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? एवरीबॉडी राइट इन द चैट बॉक्स। व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन? मैं ये सवाल आपको कभी भी पूछूंगा, मतलब अभी जो हमारा क्लास चल रहा है ना, ये तो अभी पहले चैप्टर पे है, लेकिन मान लीजिए कि इनके साथ कभी हम 10th चैप्टर भी सीख रहे हैं, 10वां चैप्टर भी सीख रहे हैं, तो भी मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सबने लिख लेना चाहिए, V इज इक्वल्स टू U प्लस 80। V इज इक्वल्स टू U प्लस 80 इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट्स इट। ठीक है, कोई भी पूछेगा, मैं ही नहीं, मतलब आपके प्रोफेसर भी, अगर आपको टीचर भी आपको पूछेंगे ना स्कूल में, व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कुछ सोचना नहीं है कि क्या है, कैसा रहेगा, मतलब मैं तो कंफ्यूज हूं, बिल्कुल नहीं। मोशन है, सर ने जो पूछा क्वेश्चन उसमें मोशन शब्द है, फर्स्ट शब्द है, दो शब्द है, बिंदास आप आंसर दे दीजिए।
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज दिस. ओके, नाउ फर्स्ट इक्वेशन तो हमने ड्रॉ कर लिया. अभी सेकंड इक्वेशन की ओर चलते हैं. चलिए, so equation describing the relation between displacement and time. Let us suppose that an object in uniform acceleration a and it has covered the distance s within time t. From the graph in figure 1.9, the distance covered by the object during time t is given by the area of quadrangle DOEB, that is S is equals to एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल DOEB. तो सबसे मेन बात जो है ना, पहला जो इक्वेशन था दैट वाज रिलेटेड टू वेलोसिटी एंड टाइम, बट जो सेकंड इक्वेशन है दैट इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम. अरे डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, डिस्प्लेसमेंट को आप क्या कहेंगे, डिस्टेंस भी कह सकते हैं. व्हाई डिस्प्लेसमेंट को मैं यहां पे डिस्टेंस भी कंसिडर कर सकता हूं. क्यों, ऐसा क्यों? बिकॉज न्यूटन के जो सारे लॉज है ना, तीनों के तीनों लॉज, ये तीनों लॉज एप्लीकेबल है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तभी न्यूटन के जो ये लॉज ऑफ मोशन है वो वर्क करते हैं. दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट कैन बी सीन एज अ डिस्टेंस आल्सो. इजंट इट? एम आई राइट और रॉन्ग? व्हाट डू यू थिंक? Am I right or wrong? Yes, good. You have to keep responding. See, अगर आपको थोड़ा सा तकलीफ होता है ना, मतलब चैट बॉक्स में टाइप कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, माइक ऑन रखिए, आपके पीछे से कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं आता है तो, और आप बोल सकते हो कि सर यस. चलो, तो सेकेंड इक्वेशन हमें देखना है दैट इज स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस. ठीक है, तो अभी हमें डिस्टेंस निकालना है. ओके, तो ये इनिशियल वेलोसिटी थी, ये फाइनल वेलोसिटी थी, और हमें निकालना है डिस्टेंस. तो मैंने डिस्टेंस का तो आपको फॉर्मूला बता दिया है, बराबर. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टाइम इनटू वेलोसिटी, राइट. तो अगर हम इस क्वाड्रेंगल का, सी DO, लेट मी जस्ट ड्रॉ हियर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वाड्रेंगल DOAEB, जो ये क्वाड्रेंगल है ना यहाँ पे, तो इस क्वाड्रेंगल का हमें एरिया निकालना पड़ेगा, तब जाके हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा. क्यों एरिया निकाल रहे हैं? क्योंकि आपको याद होगा कि हमने इस एग्जांपल में इसका एरिया निकाला था, इस क्वाड्रेंगल का, बराबर, तब जाके हमें डिस्टेंस मिला था. मतलब एरिया अंडर दिस लाइन और कर्व is nothing but the distance traveled by the object. आपको एक और चीज पता चल गई, बराबर. अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्राफ के अंदर जो एरिया रहेगा ना, दैट विल बी योर डिस्टेंस, बराबर. तो अभी हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है इस क्वाड्रेंगल का. तो चलिए देखते हैं किस तरह से निकाला जा सकता है. एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल DOEB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल DOEB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DAB. तो देखिए, ट्रायंगल DAB एंड रेक्टेंगल DAEO, इन दो एरियाज को अगर हम ऐड करेंगे सो वी विल गेट द एरिया ऑफ दिस कंप्लीट क्वाड्रेंगल. आई होप आप लोग समझ पा रहे हो कि मैं किस एरिया की बात कर रहा हूं. सब लोग समझ पा रहे हो ना? या गुड. चलो, सो किस तरह से निकाला जा सकता है देखते हैं. अभी एक और चीज ध्यान में रखिए कि जब हम एरिया वगैरह निकालेंगे ना, तो हमें क्या करना है, हमें ट्राई करना है कि हम हमारे जो लॉज ऑफ मोशन है उसमें हम AB, DA, OD, AE, AD ऐसा तो यूज नहीं कर सकते ना. ये सब चीजें यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. तो हमें ध्यान रखना है कि जहां कहीं भी पॉसिबल हो हमें या तो V यूज करना है, या फिर S यूज करना है, या फिर T यूज करना है, इस तरीके से. समझ रहे हो? तो हमें सिर्फ यही ध्यान देना है कि इस एरिया का अगर ये फॉर्मूला है तो इसकी जगह पे हम किस तरह से उसे V से, U से रिप्लेस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं. मान लीजिए कि आपका कोई डिस्टेंस BE है, ओके.
तो बी की जगह पे आप क्या लिखोगे? बी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो बताइए? व्हाट कैन बी रिटन इन प्लेस ऑफ बी? वी लिखा जा सकता है ना, वी लिखा जा सकता है, ए नहीं, वी लिखा जा सकता है। वी इज द फाइनल वेलोसिटी। अभी मान लीजिए कि कोई डिस्टेंस आपका एडी है, तो एडी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? एडी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? नहीं, मैं एडी की बात कर रहा हूं। देखो, ठीक से देखो, एडी की जगह पे नहीं विशाल, सीबी नहीं लिख सकते, ओई भी नहीं लिखना है हमें, एडी की जगह पे कादम्बरी, वेरी गुड, टी लिखा जा सकता है। समझ पा रहे हो ना? टी लिखा जा सकता है या। तो इस तरीके से आपको सोचना है कि यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है। राइट, ये जो साइंटिस्ट है ना, मतलब जो न्यूटन रहेंगे या फिर गैलीलियो है, ये सारे लोग इसी तरीके से सोचते थे ना चीजों को, तभी जाके तो वो इतने बड़े बन पाए ना। सिर्फ किताब में दिया है तो दिया है सर, दिया है तो करना पड़ेगा ना, अभी कैसा चलेगा, ऐसे नहीं बनता है ना। ये चीज मान लीजिए कि अभी आपको, आप 9th क्लास में हो, आपको 8th क्लास में, मतलब आपको पिछले 8 साल कुछ ना कुछ सिखाया गया है ना। तो अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि मैंने जो कुछ 8 सालों में सीखा है उससे कुछ अलग यहाँ पे बताया जा रहा है, सो यू हैव टू क्वेश्चन देयर कि सर ये तो मुझे नहीं पता है, मतलब ये तो मैंने नहीं सीखा है, ये कुछ नया है क्या? नया नहीं है तो वो गलत हो सकता है। राइट, और जो सीखा है तो वो अप्लाई करना है। अभी देखो ना, आपने ये चीज सीखी है कि रेक्टेंगल के जो मतलब ऑपोजिट साइड्स रहते हैं वो इक्वल रहते हैं, ये आप लोगों ने सबने सीखा है। किसने नहीं सीखा है मुझे बताइए? सबने सीखा है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, बराबर ना? बताइए, आंसर दीजिए, याद है ना सबको? कादम्बरी, ओके। विशाल, तो जब मैं इस रेक्टेंगल की बात कर रहा था, तो दिस साइड एडी इज इक्वल टू ऑब्वियसली ओई, दोनों साइड इक्वल है, तो ओई का डिस्टेंस क्या है? टी है, तो मैं एडी की जगह पे टी लिख सकता हूं ना। मतलब मैंने जो पिछले क्लासेस में सीखा है मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं उसे, बराबर या। सो वी हैव टू लर्न लाइक दिस। चलिए, अभी 8 ही मिनट बचे हैं, तो हमें हमें बहुत सारी चीजें प्रूव करनी है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल DOEA, अभी आप मुझे बताइए व्हाट कैन बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? रेक्टेंगल का एरिया क्या रहता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ एडजेसेंट साइड्स, राइट। मतलब आप आइदर AD इंटू AE करिए या फिर DO इंटू OE करिए, वन एंड द सेम। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इन सिंपल लैंग्वेज। सो यहाँ पे AE इंटू OE है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम ऐसे ही लिखते हैं, ए लिखा, OE लिखा, आपको पता है उसमें रिप्लेस क्या करना है। OE की जगह पे आप T लिख सकते हो, और AE की जगह पे क्या लिख सकते हो बताना जरा? AE की जगह पे क्या लिख सकते हो आप? व्हाट कैन बी रिटन इन प्लेस ऑफ AE? U लिखा जा सकता है, U। विशाल, D नहीं, हम लॉज ऑफ मोशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसमें डी नहीं आता है। डी है क्या कहीं पे? डी नहीं है ना, यू लिखा जा सकता है। चलिए ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एरिया ऑफ ट्रायंगल। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल? 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट। सो 1/2 लिख दिया। बेस क्या है? बेस है, मान लीजिए हाइट है AB एंड बेस है AD। तो देखिए यहाँ पे बेस लिख दिया मैंने AD और DA, एंड हाइट लिख दी AB। तो अभी आपको सोचना है AB की जगह पे क्या लिखोगे आप? AB की जगह पे क्या लिखना है? AB की जगह पे V नहीं लिखा जा सकता कादम्बरी। देखो, AB, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस AB, नॉट कंप्लीट BE, ये अलग अलग है दोनों चीजें। चलिए, AB की जगह पे CD लिख सकते हैं, AB की जगह पे CD, राइट। और CD की जगह पे क्या लिख सकते हैं? CD की जगह पे क्या लिखा जा सकता है? AT लिखा जा सकता है।
80 80 ए बी नहीं 80 80 बराबर। देखो ना यहाँ पे हमने सी डी इज इक्वल टू 80 प्रूफ करके रखा है ना। तो अभी आपको सारी चीजें पता है कि इसमें किसमें क्या लिखना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो था मैंने उसको एस लिख दिया, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो मैंने एस लिख दिया। अभी इन सारी चीजों को आप रिप्लेस करोगे, ए की जगह पे यू लिख दिया, ओ की जगह पे टी लिख दिया, और उसके बाद में ए बी की जगह पे ए टी लिख दिया। ए बी इज इक्वल टू सी डी था, तो सी डी की इज इक्वल टू ए टी है, तो ए बी इज इक्वल टू ए टी रहेगा। सो ये हमें फॉर्मूला मिल गया। S is equals to U multiplied by T plus 1 by 2 multiplied by 80 into T बराबर 80 into T। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज दिस, हेंस प्रूव्ड। अभी आप लोग मुझे बताइए, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? फ्रैंकली ये जो थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा था लॉ की कैसे सर इसे प्रूव करें, तो हमने किस चीज की जगह पे क्या लिखा? सिंपल। देखिए इसमें डाउट होने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमें उस क्वाड्रेंगल का जो है, क्वाड्रिलेटरल का जो है वो एरिया निकालना था। उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया था एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो हमने एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकाला, उसमें जो भी उसके डायमेंशंस थे वो हमने v से, u से, a से, t से, मतलब जो पॉसिबल हो सकता है उससे हमने उसे रिप्लेस कर दिया। और ये सारी चीजें रिप्लेस करने के बाद, ये सारी चीजें, आई होप आई एम ऑडिबल, या। तो ये सारी चीजें रिप्लेस करने के बाद में क्या हुआ ना कि हमें क्या मिला? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मिल गया न्यूटन का। आई होप these both laws were very easy to understand for you। थोड़ा सा पहला लॉ जो था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अगर आप उसे रिवाइज करोगे ना थोड़ा सा, तो वो भी आपको आसान जाएगा। और सेकंड लॉ तो मुझे लगता है आसान ही था ना। जो थर्ड लॉ है वो थर्ड लॉ हम तीसरे, जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम उसे प्रूफ करेंगे। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स एवरीवन, ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अभी जो पैंडेमिक है वो थोड़ा सा स्प्रेड हो रहा है, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, डोंट गो आउट ऑफ होम, स्टे एट होम, स्टडी, ओके। और जो होमवर्क है वो मैं तुम्हें क्लासरूम पे आज डाल दूंगा मोस्टली। तो आपको आप सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओके, अच्छा हुआ याद आया, आप में से कितने लोगों को क्लासरूम का इनविटेशन मिला? कितने लोगों ने एक्सेप्ट किया? कादम्बरी इनविटेशन मिला? किसी ने भी लीव नहीं करना है, क्लास लीव नहीं करना है, अभी 2 मिनट है हमारे पास। ओके, कादम्बरी ने सारे क्लासेस ज्वाइन कर लिए, विशाल ने सारे क्लासेस ज्वाइन कर लिए। आयुष, तुम्हारा मेल आईडी चेक करना है, तुम्हारा जो मेल आईडी है ना जो तुमने हमें दिया है, वो मेल आईडी चेक करना है। उस पर मैंने इनविटेशन भेजा है। अगर तुम्हारा मेल आईडी करेक्ट नहीं है तो मुझे अभी तुम्हारा मेल आईडी दे दो, मैं तुम्हें ऐड कर दूंगा। बाकी लोगों को इनविटेशन आई होप आ गया होगा, सब लोगों ने सब क्लासेस के इनविटेशन एक्सेप्ट करने हैं, सो दैट यू विल गेट योर क्लास गूगल क्लासरूम होमवर्क ऑन योर क्लासरूम इटसेल्फ। यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड हो जाएगा कल सुबह तक या फिर परसों कल रात तक, ठीक है। चैनल नेम, ओके, चैनल नेम नहीं पता है, चैनल नेम इज संतोष टकले, संतोष टकले चैनल नेम है। तो उस चैनल पे आपको सर ने जो आपके आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हो ना विशाल, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे सर ने एक वीडियो शेयर किया है करियर गाइडेंस का। तो उसी चैनल पे सारे के सारे हमारे जो वीडियोस है वो अपलोड होते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें पता है, ओके। नहीं पता है तो यू कैन पर्सनली मैसेज मी, मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा, ठीक है। चलो स्टूडेंट, तो क्लासरूम पे ज्वाइन कर लेना एंड होमवर्क कर लेना। होमवर्क आपका सिर्फ इतना ही रहेगा, लॉज ऑफ मोशन आपको लिखने हैं 3 लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। चलो बाय बाय, नाउ यू कैन लीव द मीटिंग, बाय बाय एवरीवन, या बाय, थैंक यू, बाय। आयुष, कादम्बरी, प्रार्थना, विशाल, leave the meeting, class is done, I'm not going to teach anything after that। चलो प्रार्थना, leave the class बेटा।